लड़की की शादी करनी उस तो पहले आप ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਹੈ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮੇਜਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। एक बंदे नूं थैलेसीमिया माइनर है तो कोई गल नहीं पर अगर दोनों नूं है फिर तो डेफिनेटली आप जिहड़ी है मुसीबत मोल लैन वाली गल कर रहे हैं तो इनू उत्थे ही अवॉइड कर देना। हमारे पास जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 95 बच्चे हैं जो कि फरीदकोट और आसपास के जिले से। एज ग्रुप स्टार्ट्स फ्रॉम 1 साल से लेकर इवन हमारे पास 26-27 साल के बच्चे। दिक्कत तो शुरू होती है माँ के पेट, दिक्कत तो शुरू होती है माँ के पेट, दिक्कत तो शुरू होती है माँ के पेट। ऐसे भी हैं जो हमारे पास 3 साल 4 साल की उम्र में आए हैं तो जिनका मतलब टोटली खून 1 ग्राम रह गया था। सो बड़ी मुश्किल से हमने उनको रिवाइव करके वापस एक कंडीशन। आज हमारे बच्चे जितने भी हैं आप उसको दूर से पहचान ही नहीं सकते कि ये थैलेसीमिया मेजर है और उसको ब्लड चढ़ रहा है। जब वो खुद बताता है कि हाँ मेरे को महीने में एक बार ही ब्लड चढ़ता है तब पता चलता है किसी को कि हाँ जी थैलेसीमिया। हम हमेशा बात करते हैं कि कुंडलियाँ मिलाओ, कुंडलियाँ मिलाओ, ठीक है। सो कुंडलियाँ तो चलो मिलानी है मिला लो बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्लड मिलाना बहुत 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 जरूरी। थैलेसीमिया ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮੇਜਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮੇਜਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ। ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ANC ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਸਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ। ਕੀ ਹੈ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਵਾਰਡ ਅੰਦਰ 96 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਲੱਡ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹਨ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀਮਾ ਗਰੋਵਰ ਭੱਟੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੈ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
हाँ जी, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨੋਪੈਥੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮੇਜਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਮੋਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮਾਈਨਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮੇਜਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮੇਜਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟੈਸਟ? ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ANC ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਮਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ CVS ਤੇ ਐਮਨੀਓਸੈਂਟਸਿਸ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਉਹ PGI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ PGI ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋਣ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੋਟਲ 25% ਚਾਂਸ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਲਦੀ ਖੂਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੂਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ HB ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਖੂਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲੱਡ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਚਿੰਗ ਡੋਨਰ ਲੈ ਕੇ। तो इस बीमारी ਨੂੰ पूरी तरह ठीक भी किया जा सकता है, क्योर हो सकती है, लाइलाज बीमारी नहीं। यहाँ पे हमारे थैलेसीमिया के कितने बच्चे हैं जी? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 95 बच्चे हैं जो कि फरीदकोट और आसपास के ज़िलों से आते हैं। हमारा जो हॉस्पिटल है एक टर्शरी लेवल हॉस्पिटल है और इस वजह से
नॉट ओनली फरीदकोट, आसपास के जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से बच्चे हमारे पास आते हैं। कुछ बच्चे हमारे पास राजस्थान से भी यहाँ इलाज करवाने आते हैं। सर बच्चों को क्या सुविधा दी जा रही है, क्या इलाज हो रहा है उनका? देखिए, थैलेसीमिया एक जटिल बीमारी है, इसके लिए एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हमारे वीसी सर की कंटिन्यूस विजडम और विजन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे बच्चों को फ्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी देते हैं। जितनी भी दवाइयाँ उनके चिलेशन के लिए चाहिए वो भी हमारे यहाँ फ्रीली अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास MRI T2 स्टार और HPLC की मशीन्स भी हैं जो कि काफ़ी हाई एंड इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट इन पेशेंट्स को अवेलेबल कराते हैं। ये सब हमें RBSK के अंडर पंजाब गवर्नमेंट से फ्री मिलता है। इसके अलावा जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास फिजियोथेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, इन सब से जो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है वो भी हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर राज बहादुर, उनका थैलेसीमिया के प्रति काफ़ी अच्छा रुझान है और हमारे पास जो कॉलेज की टीम है, हमारे प्रिंसिपल सर राजीव शर्मा सर और हमारे MS सर शिलेख मित्तल सर, इन सब का भी हमारे कॉन्टीन्यूस सपोर्ट मिलता है। तो VC सर ने स्पेशली हमारे हॉस्पिटल में एक डेडिकेटेड थैलेसीमिया वार्ड बनाया है जो कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं। सो ये डेडिकेटेड थैलेसीमिया वार्ड के अंदर हम डे केयर सेंटर रन करते हैं जिनके अंदर सिर्फ थैलेसीमिया के पेशेंट्स ही हमारे पास आते हैं। सो बहुत ही जल्द हमारे पास कुछ इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि NAT है जो इन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, VC सर के अथक प्रयासों से जल्दी ही यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे दिल्ली के कितने बच्चे आते हैं ब्लड लगवाने के लिए? देखिए, हमारे पास जो थैलेसीमिया का डे केयर सेंटर है इसके अंदर हमारे पास 10 डेडिकेटेड बेड्स है। सो यूजुअली आमतौर पर 6 से 7 पेशेंट हमारे पास रोज़ आते हैं, लेकिन अगर हमारे पास प्रायर इन्फॉर्मेशन हो तो हम ज़्यादा बच्चों की भी एट ए टाइम हम कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम स्टैगर्ड कर लेते हैं कि सुबह के टाइम हम कुछ पेशेंट्स को ब्लड लगा देते हैं, दोपहर को कुछ पेशेंट्स को लगाते हैं, ताकि उन पेशेंट्स को परेशानी ना हो और हर पेशेंट को बेड मिल सके। हमारे यहाँ फुली डेडिकेटेड टीम है। मेरे साथ मेरे टीम के डॉक्टर वरुण हैं जो थैलेसीमिया वार्ड को देखते हैं। हमारे साथ मैडम गुरमीत कौर सेठी हैं, वो काफ़ी सालों से थैलेसीमिया से जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो डिपार्टमेंट की टीम है वो फुली डेडिकेटेड है। हमेशा यहाँ पे रेजिडेंट्स, इंटर्न्स भी हमारे पोस्टेड रहते हैं जिनके हमें पूरी तरह से फ़ायदा होता है। सर आप जो पंजाब निवासी है थैलेसीमिया से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, थैलेसीमिया आज की डेट में अगर उसका ट्रांसप्लांट नहीं करवाया जाए तो ये क्रॉनिक बीमारी है जिसके अंदर हमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं पंजाब के लोगों से ताकीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर पेरेंट्स के अंदर थैलेसीमिया ट्रेट है तो एंटीनेटल शादी से पहले ऐसा ज़रूर करना है कि आपका टेस्ट ज़रूर होना चाहिए कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का थैलेसीमिया ट्रेट ना हो तो बहुत ही अच्छा है। सो हमारा एम यही रहेगा कि आने वाले टाइम में हमारा पंजाब थैलेसीमिया फ्री पंजाब आपका। थैंक यू। सत श्रीकाल जी, मेरा नाम डॉक्टर वरुण है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में यहाँ पे और थैलेसीमिया वार्ड को और हीमोफीलिया वार्ड को देख रहा हूँ। सर यहाँ पे हमारे थैलेसीमिया वार्ड में कितने बच्चे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने के लिए? हमारे पास लगभग 95 बच्चे एनरोल्ड हैं जो रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आते हैं और उनका एज ग्रुप स्टार्ट्स फ्रॉम 1 साल से लेकर इवन हमारे पास 26-27 साल के बच्चे भी यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब बच्चे तो नहीं कह सकते, खैर हाँ 26 साल के पेशेंट्स भी आ रहे हैं हमारे पास। सर ये बच्चों के कौन सी उम्र में ये दिक्कत आती है? दिक्कत तो शुरू होती है माँ के पेट में, ठीक है। सो इसका मेन कारण क्या है कि जो एक मदर और फादर हैं वो अगर दोनों के दोनों थैलेसीमिया ट्रेट हैं, हालांकि वो कोई बीमारी नहीं है, वो कैरियर स्टेट में होते हैं, सो उनको बीमारी नहीं होती, बट उनके अंदर एक समझ लीजिए जेनेटिक डिफेक्ट होता है। आप अगर हम इसको छोटी समझदार भाषा में समझने की कोशिश करें, बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो हर एक बंदे में एक पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन के 2 जीन होते हैं, ठीक है। सो अगर एक जीन ख़राब है दूसरा नॉर्मल है तो पेशेंट को दिक्कत नहीं आती, वो नॉर्मल रहता है। बट अगर एक डिफेक्टिव दूसरे डिफेक्टिव के साथ मिल जाए, मींस कि माँ में भी एक डिफेक्टिव है, फादर में भी एक डिफेक्टिव है, दोनों डिफेक्टिव जीन्स एक ही में आ गए, जैसे बच्चा बन रहा है माँ के पेट में, सो उसमें बीमारी आने के चांसेस होते हैं। क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, दोनों जब माँ और बाप के जो ख़राब जीन्स है बच्चे में आ जाते हैं तो उसको थैलेसीमिया मेजर होता है। अब ये प्रॉब्लम शुरू कब होती है? शुरू होती है अराउंड
4 से 6 महीने के बीच में, जब हमारा जो हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर चेंज हो रहा होता है HbF से HbA की तरफ, अडल्ट की तरफ, क्योंकि HbA बन नहीं रहा है, क्योंकि बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेंज ही नहीं बन रही हैं, सो उसमें बोन मैरो में ही ब्लड डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। सो बॉडी को लगता है कि ब्लड बन नहीं रहा है, सो आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, सो आयरन की रिक्वायरमेंट कम होनी शुरू हो जाती है, बट आयरन का बोझ यानी कि लोड हमारी बॉडी में बढ़ता जाता है और जो बच्चा है वो अपना खून बना नहीं पाता। सो इस चक्कर में उसका खून कम होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता 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 वो सीवियर एनीमिया करके हमारे पास प्रेजेंट करता है। अब क्योंकि बोन मैरो कल्ली उसको जनरेट नहीं कर पाती, सो उसकी वजह से जिगर और तिल्ली में भी ब्लड बनना शुरू हो जाता है और जिगर और तिल्ली का बढ़ाव दिखना शुरू हो जाता है। सो हमारे पास यूजुअली बच्चे 6 महीने की एज पे, 6, 7, 8 महीने की एज पे आते हैं बहुत सीवियर एनीमिया लेके, और उनकी जिगर और तिल्ली बढ़ा हुआ होता है। सो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये बच्चे और बड़े होते हैं, हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे पास 3 साल 4 साल की उम्र में आए हैं, तो जिनका मतलब टोटली खून 1 ग्राम रह गया था। सो बड़ी मुश्किल से हमने उनको रिवाइव करके वापस एक कंडीशन में ले आए हैं। सो अब रही बात कि इनका इलाज क्या है। इनका इलाज जो एक होता है जिनको हम बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन देना है, एक होता है नॉन ट्रांसफ्यूजन। सो नॉन ट्रांसफ्यूजन में कुछ दवाइयाँ हैं जो हमको पता चल जाता है कि बच्चे के साथ रिस्पॉन्स करके, हम पहली बार में नहीं कि जिसको खून चढ़ा दिया उसको पूरी देर खून ही चढ़ाना है। सो अगर किसी को खून चढ़ाया और उसको ऑलमोस्ट 2, ढाई, 3 महीने लग जाते हैं ब्लड ड्रॉप करने में, तो हम कुछ ऐसी दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं जिससे बॉडी के अंदर HbF इंड्यूस हो जाता है, जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया, ठीक है। सो उससे जब HbF अंदर बनना शुरू हो जाता है तो ब्लड की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और इन बच्चों को हम नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया बोलते हैं, और ये इनको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, ठीक है। दूसरी तरह के बच्चे होते हैं ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट, उनको ट्रांसफ्यूजन के बगैर और कोई चारा नहीं है। महीने में 1 बार से लेकर महीने में 3 बार 4 बार तक भी ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उनका ब्लड कितनी जल्दी शरीर में कम हो रहा है। अब हमारे पास जो ट्रीटमेंट, यहाँ पे जितने भी बच्चे हमारे पास एनरोल्ड हैं वो सारे के सारे ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हैं। हमारे पास अभी 2 बच्चे हैं जो नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट भी हैं, जिनको खाली हाइड्रोक्सी यूरिया मिल रही है और वो कभी ब्लड नहीं चढ़ाते। अब ब्लड किस लेवल पे चढ़ाना है, ब्लड हमने कभी भी 9 ग्राम के नीचे नहीं जाने देना। सो 9 ग्राम के ऊपर हम ट्रांसफ्यूजन देते हैं, इसको हम ऑप्टिमल ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। इससे ब्लड में आयरन की जो मात्रा है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, और बच्चे की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉपर रहती है। सो हमारे यहाँ पे जितने बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी जो जिगर तिल्ली है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हुई, जो रेगुलरली हमारे पास रेगुलर फॉलोअप में आते हैं। कुछ बच्चे अभी भी बिकॉज ऑफ पेरेंटल कंसर्न्स, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वो नहीं आ पाते टाइम से, तो उनकी जिगर तिल्ली बढ़ी हुई है। बाकी जितने बच्चे हमारे पास हैं उनकी शक्लें ही नहीं थैलेसीमिया वाली है। दूर से अगर आज से अगर हम 4 साल 5 साल पहले की बात करें, जब ट्रांसफ्यूजन प्रॉपर्ली नहीं दी जाती थी, दूर से पता चल जाता है कि बच्चा थैलेसीमिया, उसके पूरे फेस फूला हुआ होता था, ऐसे लगता था जैसे एक चिपमंक फेशिस बोलते हैं उसको, जैसे एक बंदर जैसा मुंह जैसा हो जाता है। तो उनको पेन्स भी बहुत ज़्यादा, दर्दें भी बहुत ज़्यादा होती थी। बट आज हमारे बच्चे जितने भी हैं, आप उसको दूर से पहचान ही नहीं सकते कि ये थैलेसीमिया मेजर है और उसको ब्लड चढ़ रहा है। जब वो खुद बताता है कि हाँ मेरे को महीने में 1 बार ब्लड चढ़ता है, तब पता चलता है किसी को कि हाँ जी थैलेसीमिया है। सो बट अगर हम मेन इसका ट्रीटमेंट देखें तो मेन ट्रीटमेंट जिससे क्योर हो सकता है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हमारे पास 2 तरह का है। वन इज़ जैसे हम सिबलिंग मैच्ड, अगर उसका कोई ब्रदर सिस्टर है जिसके साथ उसका HLA मैच कर जाता है, उसका कर दें तो उसको सिबलिंग मैच बोलते हैं। और अगर कोई दुनिया में किसी के पास उसका सेम टू सेम HLA है, उसको हम मड ट्रांसप्लांट बोलते हैं। कभी कभी हम मदर फादर का भी एक जने का कर सकते हैं, उसको हैप्लो बोलते हैं, हालांकि उसकी इतनी ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं है, बट हम प्रेफर करते हैं कि सिबलिंग मैच्ड ट्रांसप्लांट करें। अभी रिसेंटली हमने एक बोन मैरो कैंप भी करवाया था, अपना HLA कैंप करवाया था, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 30 बच्चों की फैमिलीज़ का सैंपल लिया है, और यही उम्मीद है कि बहुत सारों का मैच कर जाए। और उसमें सरकार की एक स्कीम भी है कि 13 साल से नीचे बच्चों के लिए जिनका सिबलिंग मैच हो जाता है, सो उनको सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की सुविधा भी मिलती है, ताकि उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट अच्छे से अच्छे सेंटर में हो जाए और वो ठीक भी हो जाए। हमारे पास ऑलरेडी 4 बच्चे ऐसे हो चुके हैं यहाँ पे जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट सिबलिंग मैच उसी प्रोग्राम के अंडर हो चुका है, और वो बच्चे इस टाइम बिल्कुल ठीक हैं, उनको कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, और वो हंसते खेलते हमारे पास आ रहे हैं। सो हमारा तो मुद्दा यही है कि जितनी जल्दी बच्चों के जो सिबलिंग्स हैं, उनके जो भाई बहन हैं, उनका किसी का मैच कर जाए, सो उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाए। दूसरा जो अभी रिसेंट फ्यूचर में इसमें रिसर्च हो रही है, दैट इज़ ऑन जीन थेरेपी।
सो जीन थेरेपी भी बहुत जल्दी ही एक नई फ्यूचर संभावना है जिसमें सब चीज़ों को, शायद ये सब चीज़ों को पीछे धकेल देगी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बगैर भी बच्चा जीन थेरेपी के थ्रू ठीक हो सकता है। कुछ नई ड्रग्स आई हैं जो हम 18 साल के बाद दे सकते हैं, जिनको हम एर्थ्राइड मैचुरेशन एजेंट्स बोलते हैं, जैसे लूसपार्टेसेप्ट। तो वो ड्रग भी अवेलेबल है, इंडिया में आ चुकी है। तो वो भी बच्चों में हम जैसे 18 साल के ऊपर जाते हैं तो उनकी भी ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी, लोड भी कम हो जाता है, एंड द पेशेंट्स कैन, उनको अच्छी ज़िंदगी वो बिता सकते हैं बिना किसी डर के। ਸਰ ਇੱਕ ਜੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? इसके लिए सबसे बड़ा उपराला है, देखिए हम हमेशा बात करते हैं कि कुंडलियाँ मिलाओ, ठीक है। सो कुंडलियाँ तो चलो मिलानी है, मिला लो, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड मिलाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आने वाले टाइम में, फ्यूचर में ये होना ही होना है, बट जितना जल्दी खासकर पंजाब में ये ट्रेंड आ जाए कि शादी से पहले, इनफैक्ट ड्यूरिंग कॉलेज टाइम पे ही हर संभावित यानी कि लड़की और लड़के का HPLC टेस्ट हो जाना चाहिए, ताकि उनके पास पहले ही पता हो कि यार मेरे को थैलेसीमिया ट्रेट है, कैरियर हूँ मैं। सो कम से कम 2 थैलेसीमिया ट्रेट आपस में शादी ना करें। बट चलो, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न अगर शादी हो भी गई तो कम से कम जब बच्चा माँ के पेट में है तो अराउंड 8 से 10 हफ्ते के बीच में एंटीनेटल टेस्टिंग हो जानी चाहिए, जिसको हम फीटल टेस्टिंग बोलते हैं, जिसमें हम कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग लेते हैं। तो बच्चे का जेनेटिक टेस्ट माँ के पेट में हो जाता है। सो अगर उसमें वो थैलेसीमिया मेजर पाया जाता है तो वो बच्चा नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, वो गिरा देना चाहिए। सो तरीका तो यही है, और पंजाब में ये इस टाइम आवर ऑफ नीड है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके अगले 4 से 5 साल में पंजाब थैलेसीमिया मुक्त हो जाए। किस रिलेशन में? कि कोई नया बच्चा थैलेसीमिया मेजर लेके पैदा ना हो। जो ऑलरेडी थैलेसीमिया मेजर के हमारे पास बच्चे हैं उनको तो चलो हम देख रहे हैं और कोशिश करेंगे कि वो ठीक हो जाएं बोन मैरो ट्रांसप्लांट से या जीन थेरेपी से, बट नया बच्चा कोई थैलेसीमिया मेजर ना पैदा हो। सर जैसे देखने में आया, जैसे कई बार कोई टेस्ट नहीं करवाता, उसमें ये बाई चांस कोई बच्चा पैदा हो गया, फैमिली के आपस में डिस्प्यूट चल रहे हैं, ब्लड नहीं लगवाए, उसमें क्या फिर कमी हो गई? ऐसा है सर कि सबसे पहले तो हमारे जैसे ये जो सोसाइटी है वो पुरुष प्रधान है। सो पुरुष प्रधान होने के साथ साथ हम पहला ही काम क्या कर सकते हैं कि जब टेस्ट कराते हैं, हम बोलते हैं ना माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो सारे के सारे टेस्ट माँ के होते हैं। सो हम फादर का टेस्ट पहले करा सकते हैं। सो फादर का टेस्ट अगर हमने करा लिया और वो थैलेसीमिया ट्रेट नहीं है, मीन्स वो नॉर्मल है, तो आप भूल जाइए कि माँ का टेस्ट फिर कराने की भी ज़रूरत नहीं है कि अगर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होएगा तो थैलेसीमिया ट्रेट ही पैदा होएगा, मेजर नहीं होना, ठीक है। सो उसमें वो टेंशन ख़त्म हो जाती है। बट हाँ, अब अगर बच्चा पैदा हो गया सो बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। सो हम उनको समझा सकते हैं, हम जब हमारे पास आते हैं हम उनको समझाते हैं ये किसी एक का दोष नहीं है, इसमें दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, ठीक है। और वो बच्चा आपका है, ठीक है, आपको बच्चे की केयर करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है केयर करने में क्या मतलब, आपने आना है यहाँ पे, ब्लड फ्री है, ट्रीटमेंट फ्री है, दवाइयाँ सारी फ्री है, कीलेशन फ्री है, टेस्ट सारे फ्री है, तो आपको किस चीज़ की टेंशन है। और आने वाला टाइम बहुत अच्छा आने वाला है जेनेटिक डिसीज़ के लिए, स्पेशली थैलेसीमिया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिल्कुल मन हारने की ज़रूरत नहीं है कि जीन थेरेपी भी आएगी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो है ही है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि हैप्लो में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएँ। बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी चल रही हैं जिसमें हैप्लो मींस कि पेरेंट्स में से किसी का ले लो तो उसके साथ मैच करके ट्रांसप्लांट हो जाए तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो सकता है। सर किसी ने ये टेस्ट करवाना हो कैसे करवाएंगे जी? उसके लिए सर हमारे कैंप्स होते हैं यहाँ पे। सो जैसे जैसे जब वो कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट हम कराते हैं, कोई पैसा नहीं लगता उसका, तो जब वो कैंप होएगा हम नोटिफाई करेंगे, आपके थ्रू भी संदेश पहुँचाएंगे। सो उसमें हम एट अ टाइम बहुत सारे का नहीं कर सकते क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो उसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो वो हम आपके थ्रू ज़रूर मैसेज लोगों तक पहुँचाएंगे। सर ये आपको मैसेज देना चाहेंगे भी कहाँ पे कौन कौन सा हॉस्पिटल है यहाँ पे ये टेस्ट फ्री होते हैं? जो HLA मैचिंग है वो एक्चुअली कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं करता अभी, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ NGOs हैं जो हेल्प करते हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं टू DKMS लेबॉरेटरी जो जर्मनी बेस्ड है। तो जर्मनी में ये सारे टेस्ट जाते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं जी, ठीक है। PGI चंडीगढ़ में भी टेस्ट हो रहा है। PGI चंडीगढ़ में वो मैरो टेस्ट कर रहे हैं विच इज़ लो रेजोल्यूशन। सो हाई रेजोल्यूशन टेस्टिंग के लिए हमारे पास NGOs के थ्रू हो सकता है। लो रेजोल्यूशन हम फॉर स्टार्टिंग PGI चंडीगढ़ ज़रूर पेशेंट्स को भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब अपने ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 95 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ 20 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ?
ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲਿਊਕੋਫਿਲਟਰ ਬੈਗਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲਿਊਕੋਸਾਈਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਿਊਕੋ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮੇਜਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ANC ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਟ੍ਰੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ANC ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਧਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ANC ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਸਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟ HPLC ਵੇਰੀਐਂਟ 2 ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ, ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨੋਪੈਥੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਨੂੰ NHM ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੀਏਜੈਂਟਸ ਵੀ NHM ਆਪ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮੇਜਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੀ? ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਵੇ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਮਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।